Simran here. Welcome back to my channel, The Candid Scribble. So guys, अभी तक CUET PG स्ट्रैटेजी की सीरीज में 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड आई एम लविंग द रिस्पॉन्स दैट यू ऑल गिविंग इट. सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड आज की वीडियो भी उन्हीं क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है. So guys, I'm starting with a new series and this series will be all about top institutes of India which are providing master's courses for biology students. And आज हम Delhi University के बारे में डिस्कस करेंगे. We'll discuss all the courses that are offered by Delhi University for master students specifically in biology field. We'll discuss their eligibility, किस पेपर से उसमें एडमिशन होने वाला है, their future and a lot more. So without further ado, let's go on the video. So मैंने हर एक कोर्स के साथ उसकी डिटेल्ड ब्रोशर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. सो इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट, डेफिनेटली चेक देम आउट. आपके ही क्लैरिटी के लिए है एंड आई थिंक अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, यू शुड बी वेल वर्स्ड कि आप कहाँ जाने वाले हो एंड कहाँ जाना चाहते हो. सो यू कैन चेक दैट आउट. तो गाइज, सबसे पहले शुरू करते हैं उस कोर्स से जिसमें मैं एनरोल्ड हूँ, MSc Zoology इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. द एलिजिबिलिटी इज बैचलर्स डिग्री इन zoology, बायोलॉजिकल साइंसेज, BSc लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ recognized यूनिवर्सिटी, और बैचलर्स डिग्री इन साइंसेज विद एटलीस्ट वन कोर्स ईच फ्रॉम zoology and chemistry from a recognized university and bachelor's honors basically zoology from University of Delhi. ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी. तो जिसको कोई भी डाउट है कि हम एलिजिबल है नहीं है इस कोर्स से, सो दिस इज द आंसर फॉर यू. ऑल्सो इसका जो पेपर कोड है जिससे इसमें एडमिशन होगा इस ईयर, वो है SCQP 28 विच इज द कोड फॉर CUET PG Zoology. ठीक है, सॉर्टेड. इस बार लाइफ साइंसेस एडमिशन नहीं हो रहा है. पिछले साल तक लाइफ साइंसेस एडमिशन हो रहा था, बट दिस ईयर दे हैव चेंज्ड इट इनटू zoology. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू मास्टर्स ऑफ zoology इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू विल हैव टू फिल द कोड SCQP 28 and give the exam. Okay, so the Department of Zoology is in North Campus. Also, what is the future of doing MSc Zoology? So the two most common options are academia and research, and that will remain constant for all the science courses that we'll be discussing today. And इसको हम एक for once and all ख़त्म कर देते डिस्कस करके कि academia is basically a professorship if you want to go in the field of colleges और टीचिंग इन स्कूल्स. अगर आप स्कूल में टीच करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स करके B.Ed करके यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर एनी स्कूल. एंड अगर आपने DU जैसे elite institute से कर रखी है तो I don't think that it will be difficult for you to get a job anywhere. So if you want to go into college वाला तरफ or universities, then you can directly apply as assistant professor after masters, after clearing your CSIR NET exam. लेकिन ऐसा है कि आजकल there is a lot of competition, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आजकल everyone is applying after doing their PhD, and of course the PhD वाला person will be preferred. ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर PhD एंड देन गो फॉर प्रोफेसरशिप, ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड सीधे यू गेट योर ड्रीम जॉब. Also, the second option is research. You can always go in research. That is the booming field of science. And इसके बाद you just clear your NET JRF which is Junior Research Fellowship, and there are so many more fellowships. उसके बारे में also I'll make a video soon. So you can clear those exams and go for research. Department of Zoology में भी there's a very nice research atmosphere, so you can definitely go there. Also zoology के बाद, as the name suggests, you will be discussing animals. You can become a veterinary assistant, wildlife biologist, conservationist, research biologist, animal breeder, lab technician and assistant professor, as I already discussed. The next course is a very popular course which is MSc Biomedical Sciences. या तो ये ऐसा कोर्स है जो इसको कोई जानता नहीं है, या तो ऐसा कोर्स है जिसके लिए लोग बहुत ही क्रेजी हैं. MSc बायोमेडिकल साइंसेज जो है, इसकी एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं. सो द फर्स्ट इज बैचलर्स डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, microbiology, genetics, life science, zoology, chemistry, major in science with minor in biomedical science, pharmacy, MBBS, BDS, BHMS, BAMS from any recognized university, or bachelor's in honors in biomedical science from University of Delhi. देखो, आई थिंक यही एक लौता कोर्स है जिसमें हर एक फील्ड से एडमिशन मिल जाएगा आपको मास्टर्स में. तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई है. नेवर मिस अ चांस टू ग्रैब दिस ऑप्शन गाइज. ऑल्सो इसका एडमिशन हो रहा है SCQP 17 से, विच इज़ लाइफ साइंसेज पेपर कोड. तो आपको लाइफ साइंसेज का पेपर कोड
फिल करना पड़ेगा टू गिव दिस एग्जाम। तो इसकी स्पेशल चीज़ क्या है कि आपको इसमें 2 कोर्सेज मिलते हैं। द फर्स्ट इज मास्टर्स एंड द सेकंड इज मास्टर्स इंटीग्रेटेड विद PhD, so it is in North Campus only. You can go into pharmaceutical companies, healthcare organizations, government agencies, quality control head, maintenance head, technical support executive and researcher. So I think इसके भी काफ़ी ज़्यादा वाइड ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो अपनी मास्टर्स के बाद. So yeah. So the next course is MSc Biophysics. This is also a very new course and काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होता, तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं. So the eligibility is bachelor's degree in physical, biological, agricultural, veterinary and fishery sciences or equivalent from a recognized university, or bachelor's degree in 4-year BSc, BE, BTech of pharmacy, engineering, technology or equivalent courses from a recognized university, or MBBS, BDS or equivalent फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी. ठीक है, इसका जो पेपर कोड एक्सेप्ट हो रहा है दैट इज SCQP 17. अगेन लाइफ साइंसेज, तो अगर आप समझ ही रहे हो कि लाइफ साइंसेज के पेपर कोड से यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन लाइफ साइंसेज का पेपर, जस्ट फिल इट. उसको आप दो ही दो, क्योंकि अगर आप साइंसेज में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ साइंसेज के थ्रू बहुत सारे एडमिशन हैं. एंड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई डिस्कस्ड कि लाइफ साइंसेज से आप कहाँ कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो. ओके, सो द फ्यूचर of being a biophysicist is a biophysicist, obviously, medical biophysics, applied biophysicist, researcher, associate engineer and quality controller. तो इसके भी काफ़ी वाइड ऑप्शंस हैं. दे आर ऑल फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज एंड अगर आप अभी जाते हो यू कैन बी अ फाउंडेशन फॉर दीज कोर्सेज. And I think this is a very very new opportunity for a lot of people जिनको physics में भी interest है, biology में भी interest है. They can definitely combine these courses together and go into biophysics. And अभी तक तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि बायो और केमिस्ट्री में कोर्सेज मज़ा आता है, तो बायो केमिस्ट्री बन गई, लाइफ साइंसेज बन गई, उनके लिए हो गया सॉर्ट. लेकिन इनको होता है ना कि बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, फिजिक्स में भी, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, तो नया कोर्सेज बन गया बायोफिजिक्स. सो गो एंड चेक. सो द नेक्स्ट कोर्स इज MSc बायोकेमिस्ट्री. इसका एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज फ्रॉम रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसका जो एंट्री कोड है दैट इज SCQP 05, जो कि बायोकेमिस्ट्री का पेपर है. तो अगर आपने स्पेसिफिकली इसी कोर्स में एनरोल करना है DU में, तो आपको बायोकेमिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा. So after doing masters in biochemistry, you can be a lab assistant, biochemist, analytical chemist, microbiologist, फार्माकोलॉजिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट. जिसको भी बायोलॉजी में उसका केमिस्ट्री एस्पेक्ट पसंद आता है, दिस कोर्स इज फॉर देम. द नेक्स्ट इज MSc जेनेटिक्स. ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ही एलीट मानती हूँ मैं, बिकॉज इसका जो लैब है साउथ कैंपस में गाइज, इट इज़ वंडरफुल. एंड मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना कि ये जो साउथ कैंपस के सारे लैब्स हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, दे आर वंडरफुल. तो आते हैं MSc जेनेटिक्स पे. MSc जेनेटिक्स की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी इज बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. द पेपर कोड SCQP 17 विच इज लाइफ साइंसेज पेपर कोड. थिंक ब्लूम करने वाला फ्यूचर में, क्योंकि आजकल पीपल आर गोइंग फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, अगर आपने सुना होगा तो, क्योंकि दे वांट कि जिससे भी दे आर getting married, they want to get their genetics counseled. Why? Because उनको पता होना चाहिए कि उनकी genetical history क्या है, what are the diseases they have had in their like parents, grandparents and everything, so that they can analyze everything and usi according they can, you know, process everything. तो I think this is a very very booming and a very futuristic option. तो अगर आप थोड़ा सा भी interested हो, you can definitely go for it. Also the other options are forensic scientist, assistant professor, animal breeder, biotech sales engineer and a lot more things. आप हॉस्पिटल्स में भी अपॉइंट हो सकते हो एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. So the next course is MSc microbiology. The eligibility is bachelor's degree in any branch of life sciences, medical sciences from a recognized university, और BSc honors in microbiology from University of Delhi. ठीक है, इसका जो पेपर कोड है दैट इज SCQP 03 विच इज माइक्रोबायोलॉजी का कोड. ओके, तो अगर आपने इसमें एडमिशन लेना तो आपने माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा. इसका जो फ्यूचर है बहुत ही वाइड स्प्रेड है. क्या क्या हो सकता है? यू कैन बी अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, you can be a demonstrator, a microbiological auditor, clinical reviewer, lab assistant,
assistant, research analyst, chief hygienistic, data analyst, medical writer and a medical coder. तो ऐसे ऐसे नए नए फील्ड्स इसमें एक्सप्लोर आप कर सकते हो जो काफ़ी कोर्सेज में नहीं कर सकते. तो इफ़ यू वांट टू गो इनटू समथिंग मोर एनालिटिकल एंड मोर just field based, you can definitely go for microbiology. So particularly DU does not offer any biotechnological courses, लेकिन एक ऐसा कोर्स है जो बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है DU में, विच इज MSc प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. एंड इससे एडमिशन आपको मिल सकता है SEQP 07 एंड SEQP 17 से. 2 कोर्सेज है बॉटनी का एंड लाइफ साइंसेज का. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ UGC recognized यूनिवर्सिटी. दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट कैन बी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी एन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो भी आजकल कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉन्सैंटो, सिजेंटा, इन सब में आप जाके अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&Ds वगैरह में, और एकेडमिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप कर सकते हो. फार्मास्यूटिकल कंपनीज दैट फोकस ऑन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स. तो आजकल के ना बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं विच आर प्लांट बेस्ड, प्रोटीन पाउडर्स जो जिम्स में मिलते हैं. ऑल्सो टुडे मीट इज प्लांट बेस्ड, है ना, प्लांट बेस्ड मीट बना रहे हैं. सो दैट इज़ अ वेरी न्यू ऑप्शन. पीपल हु आर गोइंग वेगन, उसके लिए भी आप नए नए ऑप्शंस बना सकते हो. एंड यू नेवर नो कि आपसे कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए कि कल को जाके वो फ्यूचर बन जाए इंडिया का. तो ऐसी चीज़ें सोचो. यू कैन गो इनटू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट, सेल्स में जा सकते हो, आप किसी में भी जा सकते हो. यू कैन गो इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड. ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों के बाद जाओ. तो द नेक्स्ट इज MSc फॉरेंसिक साइंसेज. MSc फॉरेंसिक साइंसेज की भी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है. बैचलर्स डिग्री इन साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट. तो इसका जो पेपर कोड है दैट इज SEQP 13 विच इज फॉरेंसिक साइंसेज का भी पेपर कोड. तो अगर आपने फॉरेंसिक साइंसेज का एक मास्टर्स करना है, सो यू हैव टू गिव फॉरेंसिक साइंसेज का पेपर इन CUET PG. फॉरेंसिक साइंसेज एंड CID गो हैंड इन हैंड, एंड सालों के डॉक्टर बन सकते हो आप. सो यू कैन बी अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. इसकी तो जॉब गारंटी बहुत ही बढ़िया है. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड अ प्रोफेशनल कोर्स. एंड इसके अंदर आप किसी में भी जा सकते हो. यू कैन गो फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, DNA एनालिसिस, फॉरेंसिक बॉलिस्टिक्स, एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी, मतलब बहुत ही सारे ऑप्शन है इसके पास. तो ये सब चीज़ें क्रीपी नहीं लगती, काटना पीटना, पोस्टमार्टम एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली गो फॉर इट. इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. नेक्स्ट इज MSc बॉटनी. MSc बॉटनी येट अगेन मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज अलॉन्ग विद zoology. तो इसका क्या है? बैचलर्स डिग्री इन बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, बायोफिजिक्स. 3 years courses after 10+2, agricultural science, life science from a recognized university, और BSc ऑनर्स बॉटनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसका जो एडमिशन होगा विच विल बी SEQP 07 विच इज़ द कोड फॉर CUET PG बॉटनी. तो इसके तो जॉब एस्पेक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी लेट्स डिस्कस. यू कैन बी अ बॉटनिस्ट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट एंड एक्सेट्रा. इसके भी फ्यूचर में बहुत ही डिमांड होने लगी, क्योंकि आजकल एवरीवन अगेन एज आई सेड इज गोइंग मोर फॉर वेजिटेरियन ऑप्शंस. वेजिटेरियन नहीं तो आजकल लोग बहुत ही प्लांट बेस्ड चीज़ों को ढूंढ रहे हैं. मतलब फार्मास्यूटिक्स में भी इसका बहुत स्कोप है. तो यू कैन ऑल्सो गो इनटू अ कॉर्पोरेट फील्ड उस तरफ से जाके. तो या MSc बॉटनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर आफ्टर योर बैचलर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स. कोर्सेज विच आई थिंक इज द फ्यूचर, which is MSc Environmental Sciences, क्योंकि you see the environment. I have no clue. 26th January को दिल्ली में ऐसी गर्मी थी which I can't tell. So I think environmental scientists can only protect us now and only save us from whatever we humans are doing to this earth. तो I think अगर आप में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, just go for this course. ठीक है, सो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. द एलिजिबिलिटी इज बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BTech BE डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय UGC AICTE फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BSc ऑनर्स एनवायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसका जो पेपर कोड है दैट इज SEQP 11 विच इज़ एनवायरमेंटल साइंसेज का कोड. अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इसके लिए आप बहुत अच्छे से ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड एज आई एम सेइंग, इसका जो फ्यूचर है इसका तो मतलब दिस इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिस्ड कोर्स कि हाँ भैया इसके बाद तो आपका फ्यूचर सेट है ही है. ठीक है, आप 2 रीजन इसमें जा सकते हैं. या तो आपकी फ्यूचर सेट है भैया, डन, डस्टेड. दूसरा कि आप
इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, you can be our hero. तो of course go for this course. After doing MSc Environmental Sciences, you can be choosing career paths like environmental consultant, researcher, policy advisor in government institutions, sustainability managers in government agencies, private companies and NGOs. तो इसका तो बहुत ही वाइड वेराइटी है आपके पास to select from. So guys, the last course for today is a very peculiar and different course. इसका नाम है मास्टर्स इन रेस्पिरेटरी थेरेपी. काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको ये भी नहीं पता होगा. एंड इफ़ यू आर समवॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर, या अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ था एंड अगर आपका अंदर थोड़ा सा सपना रह गया था कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, उसी फील्ड में कुछ करना है, सो दिस कोर्स माय फ्रेंड्स इज़ फॉर यू. सो मास्टर्स इन रेस्पिरेटरी साइंसेज और रेस्पिरेटरी थेरेपी, इसकी एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. द एलिजिबिलिटी इज बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी विद रेस्पिरेटरी थेरेपी एज अ स्पेशलाइजेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ये तो वो लोग हो गए जिन्होंने बैचलर्स में ये करा है. दूसरा, बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रेस्पिरेटरी थेरेपी. ठीक है, अगर आप लाइफ साइंसेज से भी हो ना बैचलर्स में, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स. बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये लोग भी उसमें जा सकते हैं. इसका जो एंट्री कोड है दैट इज SEQP21 विच इज दी पेपर कोड फॉर फिजियोथेरेपी. ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी का पेपर, उसका प्रिपेयर करके गो फॉर दिस कोर्स. इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, द पोल्यूशन इज राइजिंग डे बाय डे. Everyone's facing respiratory diseases, disorders, issues, what not. तो इसका तो फ्यूचर इज़ वेरी सेफ, क्योंकि आप एक तो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स बन सकते हो. आप जैसे आजकल प्रॉब्लम हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, पुअर एयर क्वालिटी है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं. सो रिसेंटली ओनली आई वेंट इनटू अ वर्कशॉप मिरांडा हाउस में, एंड वहाँ पे वन ऑफ डॉक्टर्स वॉज प्रेजेंट इन दैट वर्कशॉप एंड उनका उसमें लेक्चर था. एंड शी टोल्ड अस कि वो कैसे ट्यूबरक्लोसिस पे काम कर रही हैं उस इंस्टीट्यूट में, विच इज़ द वल्लभ भाई चेस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये अवेलेबल है कोर्स. एंड शी वॉज सो थ्रिल्ड टू एक्सप्लेन अस कि वहाँ पे रिसर्च कितनी बढ़िया है. यू विल बी अफिलिएटेड टू दी हॉस्पिटल्स एंड वहाँ से आप केसेस लोगे, आप केसेस लेके उसको एनालाइज करोगे एंड यू विल सी द थेरेप्यूटिक्स. यू विल अंडरस्टैंड कि उसको ठीक करने का तरीका क्या है. मुझे उस फील्ड में कुछ करना है. आई वॉन्ट टू सेव लाइव्स. आई वॉन्ट टू बी समवॉट अफिलिएटेड टू अ हॉस्पिटल एंड वर्क देयर. द फैकल्टी इज़ अमेजिंग देयर, क्योंकि मैंने एक ही फैकल्टी मेम्बर की स्पीच सुनी थी. इट वॉज वंडरफुल. इट गेव अस ऑल गूज बम्स एंड हमको लगा था कि ब्रो दिस इज़ टू अमेजिंग. अगर एक फैकल्टी मेम्बर की ही स्पीच से गूज बम्स आ सकते, तो सोचो वहाँ के सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिजीजेस पे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कितना फन और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो अगर आपका ज़रा सा भी वेवलेंथ इस टुवर्ड्स जा रहा है, तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू. गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. इट वाज quite थोड़ा सा लंबा वीडियो, बट आई होप दैट आई हेल्प्ड यू ऑल आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज अबाउट ऑल दी कोर्सेज अवेलेबल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अस बायोलॉजी स्टूडेंट्स, एंड उसके एलिजिबिलिटी, फ्यूचर एस्पेक्ट्स, उसका पेपर कौन सा है. इन सब में एडमिशन CUET के थ्रू होने वाला है, तो इसके अंदर कोई स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है. Also, there is no such interviews for getting accepted into Delhi University for master's level. तो आई थिंक दिस इज़ अ विन विन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अगर आप अभी भी CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं थे इनफ, आई थिंक दिस वीडियो वॉज इनफ टू मोटिवेट यू एंड पुश यू कि हाँ भैया जी शुरू करते हैं तैयारी अच्छे से. एंड अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट. यू कैन चेक आउट माई CUET PG strategy series, and I think this will be definitely helping you because it helped a lot of children, and I'm so happy that you all are giving me such positive response. And I'll be back with another video with another top institute of India. So till then, keep studying. All the best, and yeah, love you all.